Autism is today one of the most commonly discussed neurodevelopmental condition, yet it remains to be one of the most misunderstood one as well. So in today's episode, we will be exploring what autism really means and how important early recognition and intervention is. Because as we all should understand, every child, adult and grown up and old age person experiences the world differently, and sometimes that difference is simply misunderstood because of the lack of awareness and the basic knowledge. So to join us today's conversation and help us guide through this important conversation, we are joined by an RCI licensed clinical psychologist, Ms. Jumni Kamkar. Yeah. We welcome you to Didi Arun Prabha, ma'am. Yes, thank you so much for having me here. It's a privilege. So ma'am, first obviously we will have to understand the condition itself. So for the viewers, in the most simplest language as you can you tell us what is autism spectrum disorder? Okay, so autism is a pervasive neurodevelopmental disorder which can manifest before the age of 3 years. And it is called autism spectrum because every individual is different. It has different levels like mild, moderate, severe. Then there are different levels given, like level 1 if they need little bit of support, if level 2 if they need substantial support, and level 3 of ASD if they need more help, more substantial support. So it's called a spectrum because of the levels and the difference in support they take. And it has a varied different kind of not just autism, it can include Asperger syndromes, Rett syndromes and other aspects like SLDs and all that. In simple language for people, क्योंकि medical terms में especially neurodevelopmental, I think for many people it will be a new word. Yes. So what exactly is neurodevelopmental? So neurodevelopmental is very pervasive in nature. मतलब वो जन्म से ही होता है. ऐसा नहीं है कि it's not a disease and it's not a mental illness like which can be cured by medicine और एक बार treatment करके ठीक हो जाता है. It's a lifelong journey. It's the way they see the world very differently. तो इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि genetic autism gene है बोल के, ऐसा कुछ is still under research. There can be a complexity of different kinds of genetic responsible for it and environmental factors. जो it's still under process, so we can't like pinpoint specifically कि इसकी वजह से ही हो रहा है. But neurodevelopmental के मतलब वही है कि it's pervasive in nature, जो lifelong रहता है, शुरू से end तक रहता है. It's lifelong journey. Okay, so you say it's a lifelong journey. Yes. So once a person develops it, it means कि उसको उसके साथ for the rest of their life. रहता है वो throughout. Then how do we detect? What are the very dominant early जो symptoms, features होता है जिसके through you can at least say कि there is something, so we can refer to an expert. So what are those dominant symptoms? Yes, so just हम लोग जब child को देखता है ना, every child has their different milestones. Like by 2 months वो social smile कर रहा है, या फिर 6 months पे वो babbling कर रहा है, language, या फिर वो 12 months तक भी 1-2 word बोलने शुरू कर देगा. तो एज अ मदर और एज अ पेरेंट या फिर टीचर हो, तो हम लोग ऑब्जर्व करता है ना स्टूडेंट्स को कि वो माइलस्टोन अचीव कर पा रहा है कि नहीं, वो चाइल्ड अचीव कर पा रहा है कि नहीं. तो अगर रेड फ्लैग्स यू हैव टू लुक फॉर ऑटिज्म इज़ मेनली कि वो लोग का सस्टेन्ड आई कांटेक्ट इतना नहीं करेगा वो लोग, ठीक है. आई कांटेक्ट, हाँ, आई कांटेक्ट पे वो लोग को प्रॉब्लम होगा थोड़ा, उसके रिपीटेटिव थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होगा, लाइक फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स भी हो पाएगा, लाइक ट्विंकलिंग साइंस, ऐसा कुछ मतलब बहुत लैंग्वेजेस पे बॉडी पे वो होता है वो लोग का मूवमेंट्स पे. एंड दे डोंट लाइक चेंजेस, like because they stick to one routine usually. Okay. अगर एक टॉय है तो उसी के साथ खेलना है. I'm just giving an example. Yes. हाँ, तो रिपीटेशन पे ही वो लोग लर्न करेगा, रिपीटेशन पे. तो आप धीरे धीरे अगर रिपीटेशन पे वर्क करेगा तो that's how they learn it, क्योंकि वो लोग को चेंजेस नहीं पसंद हो ना. तो early signs, and also they will be very sensitive to like sensory stimulus, anything in the environment. अगर कोई loud noise है या फिर आपका बहुत जैसे कि बहुत लाइट्स आ रहे हैं कहीं क्लासरूम पे, तो सेंसरी वो ओवरलोड हो जाता है वो लोग का, दे कांट टैकल, जिसकी वजह से इमोशनल मॉड्यूलेशन नहीं है, तो जिसकी वजह से दे कैन बी वेरी एग्रेसिव ऑल्सो इन नेचर.
कभी फिर और दे माइट बी क्राइंग ऑल्सो, या फिर बाइटिंग, बहुत सारा वेज होता है. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म बोलने से हमेशा दे विल एक्सप्रेस, बिकॉज अलग अलग वेज होता है. सम कैन बी वेरी वर्बल इन नेचर, सम कैन बी वेरी नॉन वर्बल ऑल्सो. तो हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. Okay. Ma'am, before I move into the actual tool that is used for diagnosis, I also had this question about the symptoms. जैसे आप बोल रहे हैं कि before 3 years it starts developing, right? But then कुछ बच्चा होता है कि उनका माइलस्टोन थोड़ा धीरे से रीच होता है. समटाइम्स उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देन सम चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग एट वेरी लेट एज ना, कन्वेंशनल जो रिक्वायर होता है तब नहीं करता है. सो ऐसा समय में कैन दैट बी कन्फ्यूज्ड विथ? यस, बिकॉज अभी जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम हो रहा है अभी का जनरेशन में, जिसके वजह से कभी स्पीच डिले या फिर अलग माइलस्टोन डिले भी हो सकता है. तो विच इज़ स्टिल अंडर रिसर्च, लाइक वर्चुअल ऑटिज़म भी बोला जाता है उसको. हाँ, तो अभी इट्स वेरी मच इन ट्रेंड जो अभी चल रहा है. तो उसकी वजह से हाँ ये हो पाएगा, बिकॉज व्हेन यू सी स्क्रीन तो बच्चा तो तभी लड़ता है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होता है ना, जहाँ पे इंटरेक्ट करके. एंड ऑटिस्टिक पीपल यूजुअली मिरर टेक्निक्स बहुत पे मॉडलिंग शेपिंग पे ज़्यादा वो लोग सीखता है वो टेक्निक से. तो अगर वो स्क्रीन देख रहा है उसमें तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से वो लोग समझ भी नहीं पाएगा या फिर रिस्पॉन्ड डिले होगा वो लोग. तो सोशल क्यूज समझने प्रॉब्लम, तो जिसके वजह आई थिंक यहाँ ये एक पॉइंट भी हो सकता है. Thank you so much for clarifying that, because people do tend to have that confirmation bias बोलते हैं ना, कि कुछ मान लेते हैं तो उसका ही ऊपर सबूत ढूंढ के they try to prove it, and it might not be the case for the child ना. ये सोशल मीडिया में हो रहा है आजकल. And ma'am, now I'm coming to the tool. We already have it in front of us. Yes. So for the people, many are not familiar, क्योंकि कुछ के लिए it's very new in fact ना. For people who are hearing ADHD for the first time, dyslexia, dyscalculia, अभी autism है ना, we are talking on that matter. The topic itself is new for them. How will they know कि diagnosis actually कैसा होता है? So as an expert, can you please take your time to brief us about this actual tool that is used as a final measurement for diagnosis? So online में तो बहुत चल रहा है ना, ये डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस है. बट देन मेनी पीपल डोंट हैव द आइडिया कि ऑटिज़म सिर्फ ऑटिज़म बोल के नहीं होता है. कभी कभी समटाइम्स इट को ऑकर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, समटाइम इट को ऑकर्स विद ADHD जो हाइपर एक्टिविटीज़ होता है. एंड इट कैन ऑल्सो को ऑकर विद मूड डिसऑर्डर्स या फिर लो मूड एंग्जाइटी भी हो सकता है. तो ये कोमोर्बिडिटी को जानने के लिए एंड एक्चुअल डायग्नोसिस जो उसका मेन इश्यूज़ है उसको जानने के लिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल को देखना ज़रूरी है. मोस्टली डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है ऑल दी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, राइट. तो असेसमेंट में क्या करता है, मोस्टली वी फॉलो ICD DSM क्राइटेरियाज. अपना अलग अलग क्राइटेरियाज है सबका, विच इज़ यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑल्सो. तो उसके अगर आपको टेस्ट करना है बोलने से ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट करेगा, विल डू मल्टीपल स्क्रीनिंग टूल्स करेगा, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस होगा, आपका फैमिली हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री सब देख के जाके ही आपको एक कंक्लूजन पे आएगा कि एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है उसका, एंड इज़ इट को ऑकरिंग विद एनी अदर डायग्नोसिस. उसके हिसाब से भी हम लोग वो करता है ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंडेशन करेगा कि वेदर द चाइल्ड का अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपिस्ट पे पहले फोकस किया जाएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग ज़रूरी होगा तो वही बिहेवियरल मैनेजमेंट. एंड लेटर फेज में ही स्कूल में अगर एनरोल करना है तब जाके स्पेशल एजुकेटर्स लोग का हमेशा रोल प्ले करता है वो लोग. Okay, I think that is a very simple way to put it out for people as well. But you've mentioned ICD and DSM. Yes. Can you elaborate just for a minute about ICD and DSM? Yes. Okay. So ICD तो अभी एक्चुअल तो ICD 11 चल रहा है ना, तो इट इज़ WHO का वो है, मतलब फॉलो करता है. तो वर्ल्ड वाइड में मोस्टली हम लोग ICD ही फॉलो करते हैं. इंटरनेशनल वो क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर का ना, तो उसको हम लोग मोस्टली अगर सर्टिफिकेशन चाहिए कुछ भी डायग्नोसिस के लिए इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग ICD ही रिफ़र करता है. एंड अगर एजुकेशनल या फिर अलग फर्दर जो डिटेल में चाहिए तो उसमें DSM तो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली देख के हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं उसमें. Okay, thank you so much. Now that we are also have covered कि क्या क्या diagnostic tools होता है, we'll definitely move to the interventions. What sort of psychological and physiological interventions can be sought. But before that, there are some questions that's even tingling my mind.
Ma'am, there is a conception that women when they conceive later in their age, मतलब अगर let's say कि 35 के बाद if they conceived a child, they are very likely to conceive a child who can develop these conditions या तो disorders. They are more prone to it. Is it true? Because that's a very common notion. इसलिए बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी बच्चा करो. तो अगर ओल्ड एज में तो रिसर्च के स्टडी का हिसाब से तो ट्विन भी ज़्यादा होते हैं. हाँ. तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, स्टिल अंडर रिसर्च ओनली. और ऑटिज्म का तो वो कोई एक पार्टिकुलर ऑटिस्टिक जीन ऐसा है ही नहीं ना, स्टिल अंडर रिसर्च ओनली. तो ऐसा कुछ बोल के तो नहीं है कि ओल्ड एज में ही होता है बल्कि, बिकॉज हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म, राइट. अलग डिसऑर्डर्स का, कंडीशंस का देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट ऑटिज्म का तो ऐसा फ़िलहाल तो ऐसा कुछ तो है नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, वही अगर प्रीनेटल स्टेज में या फिर पेरीनेटल स्टेज में जब कंसीव जैसा किया गया था, जब प्रेगनेंसी पेट में जैसा था, अगर उसमें अगर माँ का कहीं इंजरी हो चुका है या फिर अगर अल्कोहल कंजम्पशन था उसका, या फिर कुछ भी डिले, कुछ भी प्रेगनेंसी इश्यूज़ हुआ, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से ब्रेन डेवलपमेंट में अगर इश्यूज़ हुए, हाँ तो वो हो सकता है ऑटिज़म का. सो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट्स नॉट लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीन भी ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज पे ही होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है. Ma'am, a quick follow-up on that. Okay, this could sound wrong, but when it comes to जो alcohol consumption होता है, tobacco consumption होता है, statistically men are higher. हाँ. तो if let's say कि if the father is a prolonged consumer of that substance, can that also impact? Yeah, chances है फादर या फिर मदर का, क्योंकि बोथ का जीन तो मतलब टाइम ऑफ जब कंसीव किया था ना, दैट इज़ वेरी क्रूशल. पापा का ले भी या फिर उससे फ्यू मंथ्स पहले भी वो क्या कर रहा था, तो वही हेल्दी लिविंग इसलिए ज़रूरी है. ओके, थैंक यू सो मच. नाउ वी आर कमिंग टू इंटरवेंशन, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद सोल्यूशन इज समथिंग पीपल शुड नो ना. तो व्हाट आर द प्रेजेंट ऐसा इम्पैक्टफुल इंटरवेंशंस दैट आर गिवन अपॉन डायग्नोसिस? या सो डायग्नोसिस जैसे ही होता है, दैट्स द स्टार्ट ऑफ सपोर्ट ना. सपोर्ट तभी होगा जब अवेयरनेस होता है. अवेयरनेस होने के बाद एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद सपोर्ट शुरू होगा ना. तो इंटरवेंशन में डायग्नोसिस के बाद हम लोग वही देखते हैं, हम लोग क्राइटेरिया कि इज़ इट माइल्ड, लेवल, मॉडरेट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कौन से लेवल पे है, कितना लेवल का हेल्प चाहिए, उसके हिसाब से ही हम लोग वही रेफ़र करते हैं. तो बी इट स्पीच थेरेपिस्ट होगा, ऑक्यूपेशनल, किसी में ओकेशनल रिहैबिलिटेशन भी आ जाएगा उसमें. तो उसमें ही बेसिक अगर अर्ली इंटरवेंशन हो गया आपका ना, अगर आप अर्ली इंटरवेंशन होकर सपोर्ट ले, तो वो थोड़ा फर्दर एज में जाके थोड़ा हेल्प मिल जाता है उन्हें, बिकॉज दे आर अकस्टम टू इट, दे आर अकस्टम टू द हैबिट ना. तो सीखने ईजी हो जाएगा वो लोग को. अगर थोड़ा डिले हो गया, किसी का लेट डायग्नोसिस भी होता है, तब जाके थोड़ा इश्यूज़ आ सकता है वो लोग का, मतलब स्किल बिल्डिंग में, क्योंकि वो बचपन से तो नहीं किया गया है एंड दे डोंट लाइक चेंजेस, है ना. तो एंड आई थिंक राइट नाउ एक इंटरवेंशन भी आ रही है एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ना, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन लाइक पॉलिसी है, प्लानिंग है, जहाँ पे टीचर्स भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना. टीचर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स भी है स्कूल पे. तो इफ़ दे लुक फॉर एनी सिम्टम्स है जो है, तो दे गो एंड रेफ़र टू द स्पेशल एजुकेटर्स. फिर वो लोग जाके फर्दर रेफ़र करेगा डायग्नोसिस के लिए. उसके हिसाब से ही रिकमेंडेशन होगा, प्लानिंग होगा कि कहाँ पे बच्चा को देना चाहिए, कौन सा स्पेशल नीड्स, कौन सा राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए फर्दर ना. एज ऑफ नाउ मैम, व्हाट हैज़ प्रूवन टू बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल? आई थिंक जो अभी राइट नाउ अभी जो पॉलिसी आ रहा है, वही बोला था IAP का ना, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में आया है. तो अरुणाचल में आई डोंट नो इज़ इट लाइक इम्प्लीमेंटेड और नॉट, बट बाहर जगह में तो है. आई डोंट हैव मच आइडिया ऑन दैट, बट ऐसा कुछ तो है. लेकिन IAP बोल के जिसके बिकॉज इट वर्क्स ऑन नॉट फिक्सिंग द चाइल्ड, राइट, इट वर्क्स ऑन मेकिंग द एनवायरनमेंट मोर accommodating and supportive of the child. क्योंकि I don't think autism is कि they are very mentally ill or कुछ disease है. They just see and view the world very differently ना. तो intervention भी वैसे ही individualized होने से, and I think it's being implemented. तो that is really working well. Okay. And to execute all of this, it is very important कि the people who are executing are also very highly trained. Yeah. And is there a basic qualification criteria for somebody to exercise it?
Yes, when it comes to special needs, I think RCI registration, RCI. yeah, it's really important because they have to be on like hands training ना, जो RCI trained professionals वो special educators भी होता है या फिर rehabilitation clinical या फिर child psychologist, तो ये देखना ज़रूरी है आपको क्योंकि they are hands on training ले चुका है वो लोग ना, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बेस्ड वाला सो एंड यू आर डीलिंग विद स्पेशल नीड्स किड ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द राइट ट्रेन्ड प्रोफेशनल. So what about people who have just gotten their degree and then they are practicing it because they have the basic knowledge of it? How punishable it can be? Okay, without the degree, without the RCA? With the degree, okay. But without a proper license, let's say without RCA. the proper license, I think it's unethical, unlawful as far as I know. Mental Health Care Act के हिसाब से है ना, and जो licensed वाला है, yeah, they are more prone to like they can work independently mostly. Okay. Yeah, because they are equipped and they have been trained, no? Okay. Ma'am, does that apply only for clinical psychologist, psychiatrist, or it applies for a counselor also? Counselor, therapist? No. Counselor therapist is fine, I guess. Mostly if you look for license, I think it applies for clinical psychologist usually. And in case if you're dealing with special needs kid, RCI is usually mandatory. Okay. Child cases, yeah. Here, ma'am, I have to ask you this question about a common misconception, let's say, about people who are who have autism. It's a condition, yes, right? They don't seek relationship, interpersonal relationship, let's say friendship, peer-to-peer relationship, and that misconception is, you know, around everywhere. Ma'am, as an expert, can you tackle that misconception for us? Yes, this is a very big misconception, I would say, because autism people, like ASD people जो वो लोग का कंडीशन है, they do understand and they do seek human companion, वो लोग को भी चाहिए होता है, but sometimes they don't know how to, क्योंकि social cues वो लोग को नहीं पता, reciprocal communication का idea नहीं है, and they can't even go and initiate a communication. They want to but they don't know how to. तो उसका मतलब intention तो है वो लोग का, ऐसा नहीं है कि नहीं है बल्कि, but it also depends on certain levels है, अलग है, level 1, level 2, level 3 होता है ना severity का, उसके हिसाब से भी होता है. and if जो ASD people अगर co-occurring है with ID मतलब intellectual disability या फिर अलग उसका अगर conditions और है, तब जाके थोड़ा मुश्किल होगा to understand like compassion या फिर relationships maintain करना, because वो concept नहीं है. but अगर जो mild है, moderate, maybe yeah, they really seek for interpersonal connections and all. It's just that they don't know how to, इसलिए skills development पे ही वो develop करना होता है वो लोगों को, emotions ना, they are very visual in nature, no? तो now that we know, how can we facilitate people who have the condition among us? Okay, I think not every one of us we are trained, na? Yes, and exactly. we have not been around autistic people much, normal people, so we as a general like audience, I think first thing is we should help with the awareness. अगर awareness आएगा तो ही support and provide a very supportive environment, ठीक है, non-judgmental होना ज़रूरी है I think, because we should know कि they are not lesser than us, ऐसा mindset नहीं होना चाहिए. mindset ये रखना चाहिए कि they just view, they have a different perspective about the world than us. तो जितना हो सके we should try to make the world more accommodating according to their needs, rather than try to make them comply to our like general society. So basically that brings us to the concept of neurodiversity. Yes. Can you tell the people a little more about that, because I think that's a very interesting concept. Now it's, you know, application bhi ho raha hai, even in workplace, okay, yeah. in school, so and just to add on, a lot of us are unaware, but most of us actually grew in a neurodivergent environment, है ना, क्योंकि हमारे आसपास में people तब समय में, even though there was no proper diagnosis or identification, there were children who grew up with conditions that they are still, you know, having to maintain or manage lifelong. So can you tell us about the concept of neurodivergence, neurodiversity? So neurodiversity is something which deviates from the normalcy.
इसलिए उसका नाम ही न्यूरो डाइवर्जेंट है ना. एंड वहाँ में भी बहुत सारा डिफरेंट वो है, वेरिएशंस है. राइट नाउ आवर फोकस इज़ ऑन ऑटिज़म, बट उसमें अगर ADHD भी आ सकता है, SLD अलग डाइवर्सिटी है. तो आई जस्ट डोंट वांट टू कंफ्यूज द पीपल, बट थोड़ा हाँ ओवरलैपिंग फीचर्स तो होता ही है. जैसे कि ADHD में आपने कहा हाइपर एक्टिविटी होगा, इम्पल्सिविटी होगा उसका. ऑटिज़म का बस वही सोशल कम्युनिकेशन पे थोड़ा इश्यूज दिखाएगा, रेपिटेटिव बिहेवियर होगा आपका, सोशल क्यूज नहीं समझ पाएगा. तो वी हैव बीन अराउंड दिस काइंड ऑफ पीपल थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट. बट देन वी डिडंट नो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है उसमें. मे बी वी जस्ट लेबल देम एज अरे बुद्धू है या फिर पागल है, which was so wrong of us. Maybe we have all been there, right? And it was all due to lack of awareness. तो अभी हम जब यहाँ पोडियम पे आके एक पोडियम मिल चुका है, इसलिए now we are spreading the like knowledge about it, right? कि neurodivergent भी होता है जो which deviates from थोड़ा normal people, but they are like all of us. हम लोग का core value तो same ही है सबका. We are all human at the end, right? It's just थोड़ा different होगा, वो मतलब tweak होगा. तो न्यूरोडाइवर्जेंट बोलने से इफ़ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग इट विल थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फॉर द व्यूअर. तो बट नॉर्मली तो वही है विच डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्मलसी, एंड थोड़ा ADHD SLD वो सब आ जाएगा बाकी जो है. Here I have another one question. I'm a little curious about that personally also. For people who have autism, are there some symptoms that can be completely eradicated, like completely हटा सकता है with early intervention? Okay, it depends on the level actually. Okay. Yeah, क्योंकि अगर सीवियर लेवल का वो है तो, एंड अगर वो सीवियर लेवल हो के नॉन वर्बल है प्लस को ऑकरिंग यूजुअली होता ही है विद अदर सिम्टम्स, राइट, अदर कंडीशंस, तब थोड़ा टफ होगा. लेकिन जो अगर माइल्ड लेवल का है उसमें थोड़ा ऐसा नहीं कि कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं होगा, बट देयर कैन ऑलवेज बी लाइक विद गाइडेड सपोर्ट थोड़ा टेम डाउन हो जाता है. Okay. I think we've covered most of the technical part of it. Now I would like to come to a section जिसमें I would require a lot of your opinion actually, an expert's opinion. It's a very famous trend now, na? Everybody who has a little bit of knowledge about something, they will start using that as a source of their content. So commonly people see contents like, here are the 5 things, if you have that you might have depression, I think everyone has seen that. So as an expert, ma'am, how do you see that? Because I think in this context psychology has been used for that for a very long time. Psychology says this, psychology says that. So how do you feel about that? Because after this I'm going to come to one specific question. Yeah, I think it's everywhere nowadays. Even narcissist personality disorder, my narcissist acts, or I'm borderline, या फिर I'm depressed, I'm anxious. मतलब as you said बहुत सारा diagnostic criteria दे रहा है online, right? तो वही उसका intention तो it was just to spread awareness only, right? But अभी जो how far that have come, तो उसमें तो थोड़ा ये तो over misuse भी हो रहा है, and थोड़ा exaggerations भी हो रहा है, because your people it's taking away the power from the real professionals and also people who really need help. तो वो लोग खुद को misdiagnose करके, ये मेरे साथ भी हो चुका है, बहुत पेशेंट्स आया मेरे साथ जो खुद को ADHD diagnose करके आया है, या फिर अपने आप को मतलब क्लेम करेगा मेरा ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. मतलब हाउ डू दे नो? सोर्स क्या था? इंटरनेट. एग्जैक्टली. या तो until unless they came to me or maybe other mental health professionals, तो वो लोग को आइडिया नहीं होना था, ये मिसकंसेप्शन में जीते रहेगा. एंड एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि अगर ये कुछ हुआ है आपकी क्यों क्या बोलने से, ओ नो आई हैव ADHD, या फिर हाँ, और आई एम डिप्रेस्ड. तो वही start initially अच्छे था सोशल मीडिया का इंटेंशन, राइट, बट नाउ हाउ फार इट हैज कम, पीपल थोड़ा मिसयूज कर रहे हैं उसका. वही a follow up on that, ma'am. I have seen it in my circle as well. मेरा अपना ही social circle में देखा है, when somebody has developed an intense interest in one topic, let's say philosophy, let's say psychology, let's say space, and simply any topic, they start calling themselves autistic. Okay. Because of the fixation. Yes, because there is a symptom, right, कि एक intense interest, like routine, they don't like changes. But यहाँ पे misconception आ रहा है बहुत,
क्योंकि दे आर जस्ट टेकिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द क्राइटेरिया, जबकि आप तभी आप डायग्नोस करते, देयर आर अ वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया लेवल्स है उसका ना, अलग अलग डायग्नोस्टिक लेवल्स है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक सिम्टम पे आप टिक हो रहा है, आप लाइक फिक्सेशन है एक ही चीज़ में तो आप ऑटिस्टिक है, ज़रूरी नहीं। व्हाट अबाउट द सोशल क्यूज एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द सोशल कम्युनिकेशन वन, रेसिप्रोकेटी बात तो कर रहा है आपको ठीक से, वो इसलिए तो बता भी पा रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, व्हाट अबाउट द रिपीटेटिव बिहेवियर वाला, तो देयर कैन बी मेनी अदर एस्पेक्ट ना। सेंसरी, अगर वो सेंसरी एस्पेक्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज़म के लिए, तो इजी और शी वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज वो लोग को इतना आइडिया नहीं हो कि बस एक में पकड़ के वो लोग देखा ना डायग्नोस ना कि हाँ हम ऑटिस्टिक है जस्ट बिकॉज आई एम फिक्सेटेड ऑन अ सिंगल रूटीन। I mean, see, I wouldn't have much to say from my end. I just wanted to hear your opinion as the expert yourself, because ground level में only you know. Yes. है ना, for us तो even for me, I might have read a thing or two from internet and I'm asking you the question, but you know the whole booklet of it. So ma'am, here comes one important question in relevance to the culture of Arunachal Pradesh. Do you think cultural differences can lead to any sort of interference diagnosis में या तो in early intervention में? हाँ, ये हो सकता है, especially due to lack of awareness, especially if you go to villages or interior places जहाँ पे इतना education नहीं है या फिर awareness नहीं है कि autism क्या होता है। तो अगर वो सब areas में आप जाएगा, maybe they might see some milestones delay, आप बात नहीं कर रहे हैं बच्चा अभी तक, या फिर पिंसर ग्रास्प बोल के होते हैं ऑटिज़म में। हाँ, वो समय पे भी हो नहीं पकड़ता, बाई आई थिंक 12 months तक तो पकड़ना चाहिए वो लोग को, सैंड उठा के एक जगह में रखना, ये सब ना। तो वो सब मूवमेंट अगर डिले हो रहा है, उसका लैंग्वेज डिले हो रहा है, आपका वो आई कंटेक्ट नहीं करता है, वो ना आपको रेस्पॉन्ड करता है ठीक से, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है वो सोशल क्यूज़, तो ये सब तो बाहर में वो लोग को लगेगा कि अच्छा ये तो पागल है या फिर भूत लग गया, ऐसा कुछ। हाँ, तो बिकॉज they don't know कि ऑटिज़म क्या है, until unless you know the language, the word, तो वो कंसेप्ट ही नहीं होगा आपका दिमाग में। तो फर्स्ट चीज़ तो वही है कि अवेयरनेस। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है अरुणाचल में, कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड थोड़ा एजुकेशन, साइको एजुकेशन अबाउट लाइक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन चाइल्ड ना, लाइक फॉर अभी जो ऑटिज़म के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में तो इतना साइको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये ग्राउंड लेवल पे ही शुरू करने से ठीक है, स्कूल से ही ट्रेंड, अगर बस्ती बस्ती में भी अगर थोड़ा इसके बारे अवेयरनेस करने से, दैट वुड बी हेल्पफुल। मैम, one last question for you is how on a, because institutional industrial level में तो there are already a preset है ना कि ऐसा system है, but on a parental level that would be, I would like that to be your final remark for the parents as well who are watching ना। एक parent क्या कर सकता है for their child to extend let's say an understanding or एक environment create करना where they feel like they are included at least? I think firstly as a parent, I think one parent should be a very good observer. You shouldn't delay कि taking help, ये सोच के कि child will outgrow the delay, बड़ा होके खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब milestone delays आप देख रहे हैं, be it any delay, like ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब एक पार्टिकुलर को देख के भी आप नोट डाउन करना है, हमेशा अलग अलग सिम्टम्स को नोटिस करना है ठीक से, जब वाइल द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप। सो फ्रॉम 0 to 3 years भी बहुत क्रूशल होता है, ये पीरियड में आपको देखना पड़े, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। यू शुड, अगर आपको टीचर्स भी कोई ऑब्जर्व करके बोल रहा है या फिर कोई अलग घर वाला भी बोल रहा है, यू शुडंट नेगलेक्ट इट, इट्स नॉट समथिंग यू कैन नेगलेक्ट। जाके एक ट्रेंड प्रोफेशनल को आप जाके हमेशा हेल्प सीख करो, तब जाके अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है अर्ली सपोर्ट, अर्ली हेल्प मिलेगा आपको। ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग क्योर भी है, बहुत लोग डिनाइल में भी रहता है, तो आई थिंक उसके बदले पीपल खुद से भी बहुत सीखने का ट्राई करना चाहिए, रीड अबाउट दैट थोड़ा, और क्या क्या कर सकता है उनकी इंटरवेंशन, तभी पॉसिबल होगा और तभी बच्चा जो आगे जाके ठीक कर पाएगा जब अर्ली इंटरवेंशन होगा। तो आप राइट प्रोफेशनल के साथ जाके राइट टाइम डायग्नोसिस करके अगर बचपन से स्किल्स बिल्डिंग पे और एनवायरमेंटल बिल्डिंग पे आप वर्क करेगा, आगे जाके द चाइल्ड वुड बी वेरी मच अडैप्टिव इन द जनरल लाइफ।
We can conclude today's conversation, and for all the audience who are watching this, I hope this is very informational for you and you can use this information to further educate the ones around you or imply it yourself to change the life of others around you. With this is your host Jumila signing off. Thank you for tuning in on Didi Arun Prabha.